بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے بدقسمتی کے دروازے بند ہونے اور خوش قسمتی کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، بگڑی تقدیر سنورنے لگتی ہے اور برسوں سے رکے ہوئے کام بھی آسانی سے بننے لگتے ہیں۔ جو لوگ خود کو ناکام، پریشان اور بدقسمت سمجھتے ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ چند لمحات کا عمل زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لے آتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار دل سے پڑھ کر خود آزما لیں۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ مبارک گھڑیاں جن کا پورا سال شدت سے انتظار کیا جاتا ہے اب بالکل ہمارے قریب آ چکی ہیں، کیونکہ اسلامی سال کا وہ عظیم اور بابرکت مہینہ یعنی سفر کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے بنائے ہوئے کسی بھی مہینے یا دن میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، بلکہ یہ مہینہ تو اللہ کی رحمت برکت اور بندے کے امتحان کا مہینہ ہے۔ جب سفر کا چاند نظر آنے لگتا ہے تو آسمان سے ایک ایسی رحمت برستی ہے جن کی مانگنے والوں کے کشکول چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور رب کی عطا کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اگر آپ کی زندگی دکھوں کا گہنا بن چکی ہے، اگر غریبی، تنگ دستی اور قرض کے بوجھ نے راتوں کی نیند چھین لی ہے، اگر کاروبار ختم ہو چکا ہے اور بے روزگاری نے مایوسی کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، یا پھر روزی میں آسانی کی آش اور ٹوٹے ہوئے دل کا سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک چکے ہیں، تو یقین جانیے کہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے کا ایک ایک لمحہ شوگنا قیمتی ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور اللہ پر یقین کے ساتھ 7 مرتبہ اس مولائے کائنات کی صورت کو پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے ناممکن کو ممکن کر دے گا اور تقدیر کا بند تالا ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو قربتوں کے خزانے عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، سچ کہوں تو میں نے خود اس بے پناہ برکت والے مہینے کا انتظار کیا ہے جن میں سفر کا چاند نظر آنے کی وہ سحر انگیز گھڑیاں شامل ہیں، جن میں ہم اس صورت کو پڑھ کر اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو جگا سکیں۔ وہ زندگی کی سچی لذت اور کیفیت جہاں روح اپنے خالق کے سامنے رو پڑے اور دعائیں قبول ہونے کا مہینہ آ جائے۔ سفر کا مہینہ تو تاریخ بدلنے کا نام نہیں، یہ تو گنہگاروں کے لیے بخشش کا پیاسا سمندر ہے اور رب کو ماننے کا خاص وقت ہے، جب دنیا کی تمام افواہوں کو رد کر کے صرف اپنے اللہ کی توحید اور اس کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہے، اور جب اللہ اس مہینے میں بلا شبہ اپنے بندوں پر خاص فضل اور کرم فرماتا ہے تو اس کا الہی فیض شروع ہوتا ہے۔ اے رب کریم اپنے بندوں پر رحمتوں کے خزانے لٹا دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب اور خوبصورت موقع لے کر آنے والی ہوں کہ اگر آپ نے اسے کامل یقین اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھ لیا تو ادھر آپ کی تلاوت مکمل ہوگی اور ادھر غیب سے آپ کی بگڑی تقدیر سنور جائے گی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس سورت کو پڑھا اور سچے دل سے سر اٹھانے سے پہلے ان کی جھولی خوشیوں سے بھر گئی۔ کئی سالوں کا رکا ہوا رزق سیلاب کی طرح امڑ پڑا، کسی کے گھر سے نحوست اور بیماریاں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جیسے ہی عمل مکمل ہوا اللہ نے غیب سے ایسی مدد فرمائی کہ جن کے کاروبار بند ہو گئے تھے وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے بلکہ بڑی عزیز اور انکساری دکھانے والا اور ہر اجر کو پورا کرنے والا، اجر و ثواب کے انوکھے خزانوں اور اندھیروں کو مٹانے والا ایک بہت ہی مقبول عمل ہے جو انسان کو سفر کا چاند دکھنے سے پہلے ہی اس کا دامن مالا مال کر دے، جو اپنی بیڑیاں توڑنا چاہتا ہے اور اپنے گھر کو امن و محبت کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مبارک سورت کو 7 مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ اگر یہ سورت سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار پڑھی جاتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے کہ تنگی اور پریشانی دور ہونے لگتی ہے، مشکلوں کے اندھیرے امیدوں کی روشنی میں بدل جاتے ہیں اور غیب سے ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا انسانی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ وہ لمحات ہے جن میں اس کی بارگاہ میں اپنے یقین کو ثابت کرنے کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے دنیا کی مصروفیات میں سے چند لمحے نکال لیجیے تاکہ کل کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور عزت و سکون کی زندگی نصیب ہو سکے۔ خدا کے لیے دنیا کے سب مشغلوں کو چھوڑ کر سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے
इस मुबारक सूरत को 7 मरतबा जरूर पढ़ ले। अगर ये सूरत सफर का चांद नजर आने से पहले 7 बार पढ़ी जाती है तो वहाँ अल्लाह की रहमत का साया हो जाता है और रिज्क में बरकत आती है जिसकी इंसान तवक्को भी नहीं कर सकता। माह सफर का चांद तुलू होने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर देखिए कि कैसे अल्लाह आपके मुकद्दर को सितारों की तरह चमका दे और रहमत के समंदर आपके कदमों में बहा दे। आप चाहे इंडिया के किसी शहर में, पाकिस्तान के किसी गांव में हो, सऊदी अरब में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, माह सफर का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा जरूर करना है। ये वह कीमती लम्हात है जिन्हें जाया नहीं करना अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोटने के बराबर है। खास तौर पर मेरे वह मजबूर भाई और परेशान हाल बहनें, मेरी वह बहनें जिनकी जिंदगी की जंग शक्तियों के बीच गुजर रही है, जो खाली जेब और टूटे हुए दिलों के साथ इस उम्मीद पर ये वीडियो देख रही हैं कि शायद उनकी जिंदगी में कोई रोशनी की किरण नजर आ जाए, तो सुन लीजिए, आज आपकी रब की रहमत का वह दरवाजा खुलने वाला है जो कभी बंद नहीं होगा। आप ये मुबारक वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, चाहे आज पढ़ें, कल पढ़ें या परसों, जब भी आपका दिल गवाही दे और आपको सुकून का एक लम्हा मिल जाए। इस अमल को अपना कर अपनी मुराद मांग लें, चाहे आज फर्ज नमाज के बाद पढ़ें, सुन्नत के बाद, नफल के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जिस वक्त दिल मुतमईन हो और फुर्सत मिल जाए, वुजू करके अल्लाह के हुजूर बैठ जाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वजीफा आपने माह सफर का चांद नजर आने से पहले लाजमी पढ़ना है। जैसे ही चांद नजर आने की खबर आएगी ये खास वक्त खत्म हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि इस मुबारक घड़ी से पहले ये वजीफा जरूर पढ़ लें। तो आइए मोहतरम नाजरीन, अब हम उस मुबारक अमल की तरफ बढ़ते हैं जिसके बारे में आपने शुरुआत से सुना है और जान लेते हैं कि इसे किस तरह अदा करना है और किन अहम बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि इसकी बरकत और फजीलत से पूरा फायदा हासिल किया जा सके। लेकिन उससे पहले कि मेरी आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी फरमाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह कुरान और सुन्नत की रोशनी में तैयार किए गए रूहानी अमल, दिलों को सुकून देने वाली दुआएं और जिंदगी में उम्मीद और हौसला पैदा करने वाले पैगाम आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। कौन जानता है, शायद यही एक नेक बात, यही एक दुआ या यही एक अमल आपकी जिंदगी में खैर, बरकत और कामयाबी का जरिया बन जाए। मोहतरम नाजरीन, ये वह अमल करने में बेहद आसान है, लेकिन इसकी बरकत और असरात इतने खास हैं कि बहुत से लोगों ने इसकी बदौलत अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत तब्दीलियां महसूस की हैं। सफ़र का चांद नजर आने से पहले जब भी वक्त मिले वुजू करके मुसल्ले पर खामोशी और अदब के साथ बैठ जाएं। सबसे पहले अल्लाह के महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारगाह में दरूद पाक पेश करें। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। लेकिन याद रखिए, दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल और बाबरकत दरूद है जिसकी बरकत और फजीलत बेशुमार है। जो भी दरूद पाक पढ़े दिल की गहराइयों से मोहब्बत और अदब के साथ पढ़े, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो कि शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है उसकी परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं, बंद रास्ते खुलने लगते हैं और रहमत उसके कदम चूम लेती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत कर लीजिए, क्योंकि आज आप जिस मकसद की नियत से बैठेंगे अल्लाह के हुक्म से सफ़र का चांद तुलू होते ही उस मकसद के पूरा होने के रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नया घर चाहते हैं तो अल्लाह के
से घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मांग लें, नौकरी, कारोबार, शादी, औलाद, कर्ज, दुनिया और आखिरत की कोई भी हाजत हो अल्लाह से मांग लें, क्योंकि अल्लाह वालों का कहना है कि इन बबरकत दिनों में मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं होती। अपने मकसद की नियत करते ही फौरन आप एक मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस मुबारक वजीफे का आगाज करना है। इसके बाद आपने पूरे अदब, मोहब्बत और यकीन के साथ सूरह अल कौसर 7 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। इसका तर्जुमा है, बेशक हमने आपको कौशर अता फरमाया तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। बेशक आपका दुश्मन ही बेनाम और बेनिशान रहने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आपने सूरह अल कौसर को 7 मरतबा पढ़ना है। हर मरतबा तिलावत के बाद अपने दिल की गहराइयों से अपनी हाजत, अपनी परेशानियों और अपनी मुराद अल्लाह ताला के सामने पेश करनी है। इसके बाद इस वजीफे में आपको पढ़ना है रब्बे करीम के एक सिफाती नाम और एक इसमें जात का मुबारक वजीफा, और वह मुबारक नाम है या अल्लाह या करीम। ये वह नाम है जो हर किसी की मुरादों को पूरा कर देता है, और अल्लाह के इस मुबारक नाम की फजीलत और बरकत इतनी अजीम है कि आज हर कोई इसकी बरकत और करम से मालामाल होना चाहता है। चाहे आप रिज्क और दौलत में इजाफा चाहते हो, अपने घर के हालात बेहतर करना चाहते हो, या फिक्र और तंगी से निकलकर आसानी और खुशहाली की तमन्ना रखते हो, या रब के खजानों से जितना लेना चाहे इनाम आपकी हर हाजत पूरी करने को ताकत रखता है। आपने इसे कैसे और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो फरमाइएगा। आपने पढ़ना है या अल्लाह या करीम 1 बार, या अल्लाह या करीम 2 बार, या अल्लाह या करीम 3 बार। इसी तरह आप हाथों की उंगलियों पर गिन कर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर गिन कर पढ़ लें। आपको ए मुबारक नाम कुल 11 मरतबा पढ़ना है, और हर मरतबा पढ़ते हुए रब्बे करीम से अपनी हाजत, अपनी परेशानियों का हल, अपने रिज्क में बरकत और अपने दिल की मुरादें मांगते रहना है। अपने दिल की गहराइयों से मांगिए, क्योंकि यह बबरकत और अहम लम्हात है जिनमें रब्बे करीम से अपनी खास नज़र करम से अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और अपनी शान के मुताबिक अता भी फरमाता है। आज आपने सच्चे दिल, कामिल यकीन और पूरे भरोसे के साथ अपने रब के सामने हाथ फैलाने हैं, क्योंकि जब बंदा टूटे हुए दिल और सच्चे यकीन के साथ अपने मालिक को पुकारता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और करम की बारिश शुरू हो जाती है। आज आपने सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ वजीफा पढ़ना है, और यकीन रखिए कि जैसा आप मांगेंगे अल्लाह ताला अपनी मर्जी और हिकमत के मुताबिक बेहतर अता फरमाएगा। यही वह लम्हात है जब इंसान अपनी उम्मीदों और दुआओं के साथ अपने रब की बारगाह में झुकता है और उसकी रहमतों का तलबगार बनता है। इसके बाद आपने या अल्लाह या करीम पढ़ना जारी रखना है 11 बार। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप ये वजीफा पढ़ रहे हों तो किसी से बात नहीं करनी है और ना ही कोई आपसे बात करे, समझ गए। अदब और सुकून के साथ अल्लाह को याद करते रहना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब इंसान जिक्र इलाही में मशगूल होता है तो उसके दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते भी उसकी नेकियों को लिखते रहते हैं। फिर जब वह अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और बंदे के अमाल का जिक्र करते हैं तो अल्लाह फरमाता है, आए फरिश्ते बताओ आज मेरे बंदे ने क्या अमल किया। नेकियों वाला फरिश्ता अर्ज करता है, या अल्लाह आज तेरा बंदा तेरे जिक्र में मशगूल रहा और हर वक्त तुझे पुकारता रहा। फिर अल्लाह अपनी रहमत से फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना मैं अपने इस बंदे से राजी हो गया। आज जिसने नेक और जायज हाजत के लिए मुझसे दुआ मांगी है मैं उसकी दुआ कबूल फरमाता हूँ। मोहतरम नाजरीन, ये तो सफ़र के मुबारक दिनों की खास बरकत है, ये तो सफ़र के खास रहमत है। ये वह दुआएं हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों का खास करम फरमाता है। उस वक्त जो भी परेशानी हो अल्लाह के हुक्म से उसका हल निकल सकता है। जितना मांग सकते हो मांग लो। अब ये महीना आपके लिए खुशियाँ ला रहा है, रिज़्क ला रहा है, सुकून, रहमत, बरकत और कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। इसलिए दुनिया के तमाम काम छोड़कर सफ़र का चाँद नज़र आने से पहले ये तीनों अमाल बताए गए हैं। तरीके, तरतीब और अदद के मुताबिक ज़रूर कर लें, फिर देखना अल्लाह कैसे आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल देता है। जब आप इन तीनों अमाल को बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद के मुताबिक मुकम्मल करने तो आखिर में फिर अल्लाह के महबूब की बारगाह
अक़दस में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल की शुरुआत में पढ़ा था, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो दुआ दरूद पाक से शुरू हो और दरूद पाक पर ख़त्म हो, अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अब आपका एक मुबारक अमल मुकम्मल हो चुका है। इस वजीफे के बाद नहायत अजीजी इनकशारी और यकीन के साथ अल्लाह करीम से दुआ मांगे। मोहतरम नाजरीन, एक कोई आम वजीफा नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर कुरानी अमल है कि अल्लाह के हुक्म से कई बिगड़ी तकदीरें सवर जाती हैं। इन अमाल की बरकत और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से माली तंगदस्ती की खुशहाली में बदल देता है, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल देता है, दिल की मुरादें पूरी फरमा देता है और बाज औकात तो ऐसी खुशखबरी अता फरमाता है जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन याद रखिएगा, इस अमल को सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ना है। अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन, कामिल भरोसा, अच्छी नीयत और पूरी यकसुई के साथ इस वजीफे को पढ़ना है, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत जोश में आ जाती है और रब्बे करीम अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। आप जितनी भी जायज़ मुश्किल के लिए वजीफा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ मुराद पूरी होने के रास्ते पैदा फरमा देगा। अगर आप रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। अगर आप सुकून चाहते हैं तो सुकून अता फरमाएगा। अगर आप कर्ज से निजात चाहते हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानी और राहत के रास्ते पैदा फरमा देगा। अगर आप अपने घर में मोहब्बत, खुशहाली और चैन चाहते हैं तो रब्बे करीम आपकी ज़िंदगी को अपनी रहमतों से भर देगा। अगर आप औलाद की खुशी चाहते हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं, नौकरी में कामयाबी चाहते हैं या फिर अपने दिल की किसी ऐसी मुराद के लिए दुआ कर रहे हैं जिसे सिर्फ आप और आपका रब जानता है, तो यकीन रखिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बस आपका यकीन मजबूत होना चाहिए और आपका दिल अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। दुआ है कि रब्बे करीम मेरी और आप सबकी दुआ को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो आपने मांगा है वह अता फरमाए और जो मांगना भूल गए हैं वह भी अपने फजल और करम से अता फरमा दे। या अल्लाह माह शफर को हम सबके लिए रहमत, बरकत, आसानी, कामयाबी और खुशियों का जरिया बना दे। हमारे घरों से परेशानियां, तंगदस्ती, बीमारियों और मायूसी को दूर फरमा दे। हमारे दिलों को सुकून, हमारे रिज़्क़ में बरकत और हमारी ज़िंदगी में अपनी रहमतों की बारिश नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी अपने रिज़्क़ में बरकत, अपने घर में सुकून और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं तो अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से कोई एक मुबारक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है आपकी उंगलियों से लिखा गया वही एक मुबारक नाम आपकी ज़िंदगी में रहमत और बरकत का सबब बन जाए। और अगर आपको हमारी एक कोशिश पसंद आई हो तो इब्राहिम चैनल वॉइस को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ कोशिश यही रहती है कि आप तक ऐसी बातें पहुँचाई जाएं जो दिलों को सुकून दे, उम्मीद जगाएं और अल्लाह की रहमत की तरफ इंसान का ध्यान दिलाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर होए, आमीन। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में एक नई दुआ, नई उम्मीद और एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।